Bismillahirrahmanirrahim. I welcome you all in today's session. And today we're going to talk about motivation. Up to last time, we discussed that motivation is basically talking about intensity, persistence, and direction. And intensity would mean how hard a person tries. Direction would mean towards a beneficial goal, and persistence would mean how long a person tries. So these were the three key elements related to motivation. And we discussed about these three elements in detail last time. Now we are moving one step ahead, and this time our discussion is related to the employee's concern, that what motivates employees. So in simplest sense, motivation involves three elements. The first one is what is important to a person, and obviously it would be related to the person's needs and wants. The second thing related to employees' motivation is offering it in exchange for something, कि ये एक give and take relationship होता है, जिसमें के the employee would be offering his or her services, his or her skills, competencies, or जिसके against there would be some compensation or there would be some benefits. So पहली चीज तो ये हमें कंसीडर करनी होगी कि एक पर्सन के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, और फिर हमने ये देखना है कि हम एक्सचेंज जो मटेरियलाइज कर रहे हैं उस एक्सचेंज में किस लेवल ऑफ सर्विसेज को हम डिमांड कर रहे हैं और किस लेवल ऑफ कंपनसेशन को एम्प्लॉय डिमांड कर रहा है. और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो एम्प्लॉय को मोटिवेट करती है, दैट इज द डिजायर्ड बिहेवियर, जिसमें के एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर रिलेशनशिप दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. कोलीग्स के साथ रिलेशनशिप, कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप, और उसमें आपकी जो डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर्स होगा, दैट इज समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट टू अ पर्सन, जो कि लोगों को मोटिवेट करता है. बिकॉज समटाइम्स अगर बहुत अच्छा पैकेज प्लान भी हो लेकिन वहां पर रिलेशनशिप्स अच्छे ना हो, ट्रस्ट ना कायम हो सके, तो उस सूरत में वो बहुत अच्छा पैकेज शायद थोड़ी ही अरसे के बाद कुछ खास मायने नहीं रखेगा. सो डिजायर्ड बिहेवियर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, एम्प्लॉय पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एम्प्लॉयर पॉइंट ऑफ व्यू से भी. अब हमारे पास कुछ मोटिवेशन थ्योरीज हैं जिनको हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द फर्स्ट सेट ऑफ थ्योरीज आर टॉकिंग अबाउट व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू अ पर्सन, और इन थ्योरीज को हम कहते हैं कंटेंट थ्योरीज, बिकॉज इन थ्योरीज में टिपिकली नीड्स जो थी वो आइडेंटिफाई हुई. फॉर एग्जाम्पल, कंटेंट थ्योरीज में इंक्लूड मैस्लोज हायरार्की नीड, हर्ट्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी, मैक्लेयर्स नीड्स थ्योरी. सो इस तरह की जो थ्योरीज हैं दे आर नोन एज कंटेंट थ्योरीज. इन आवर डिटेल विल बी एडिंग मोर थ्योरीज इन दिस लिस्ट एज वेल. Then the second set of theories would be related to the nature of the exchange. And the nature of the exchange, which are known as the process theories, उसमें हमारे पास expectancy theory, equity theory, इस तरह के contents जो हैं वो आते हैं. And then the reinforcement theories, जिसमें कि desired behavior की हम बात करेंगे, वो employer perspective से भी और employee perspective से भी, तो उसमें हमारे पास गोल सेटिंग थ्योरी, रीइंफोर्समेंट थ्योरी, इस तरह के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो एडअप किए जाते हैं. सो डिफरेंट तरह की मोटिवेशन थ्योरीज, दे ट्राई टू एड्रेस दीज थ्री की क्वेश्चंस, दैट व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू अ पर्सन, द नेचर ऑफ द एक्सचेंज एंड द डिजायर्ड बिहेवियर. सो लेट्स स्टार्ट विद दैट व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू अ पर्सन, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फेमस थ्योरी is presented by Abraham Maslow. And Abraham Maslow came up with an idea of hierarchy of needs. And in that hierarchy,
he identified 5 increasingly higher level needs. So the first level in that hierarchy is talking about physiological need, which may include food, water, shelter, etc. Then there is security need, which is talking about a safe environment, and we'll be very soon talking about what are its implications in the organizational facility. So the security would be talking about a safe environment, and security you need to save your sources of supply related to your physiological need. Okay, कि पहले लेवल पर जो आपको रोटी कपड़ा मकान मिला तो कोई आपसे उस रोटी कपड़ा मकान को छीन ना ले. So that is the security you need to go for, and obviously life security भी उसमें शामिल है. उसके बाद हमारे पास social need आ रही हैं, जिसमें कि relationship with others की हम बात करेंगे. Then the fourth level need, which is rather more like a want in case of Maslow's hierarchy of need, and that is self-esteem, जिसमें कि a sense of personal worth one gets. And then there is self-actualization, becoming the desired self. One tries to become what he or she is capable of becoming. So that is the highest level of need according to Abraham Maslow, which is called self-actualization. You the typical सा model you have already gone through in couple of courses. अब हम इसकी implication को देखेंगे कि organizational facility में आपने इन तमाम needs को incorporate कैसे करना है. So before we talk about those examples, it is said, according to Abraham Maslow, that lower level needs must be satisfied before higher level needs can be addressed or become of interest to the individual. और ये भी एक बड़ा controversial aspect है, because this is not perhaps possible in every given condition. Every person might not be available with the appropriate level of physiological need, but that does not mean कि अगर उसकी physiological need पूरी नहीं हुई तो उसको self esteem भी feel नहीं होगी. इसके एक typical जो hypothesis quote किया जाता है वो ये है कि perhaps a homeless person would never have a self worth. A homeless person would never have a sense of personal worth. Okay, so this is not perhaps applicable in every given circumstances. There are a couple of instances when people might be suffering from calamities. The people might not be able to meet up their physiological needs according to the desire. हो सकता है कि वो गुर्बत में हो सकता है कि वो लोग अपना घर ना रखते हो, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं हो सकता कि वो ना अपने आप को एक्चुअलाइज कर सकते हैं और ना अपनी सेल्फ एस्टीम रख सकते हैं. You might have heard about a concept known as bottom of the pyramid, right? जिसमें कि हम below poverty line के जो लोग हैं उनका जिक्र करते हैं. And mind you, in the world there are a lot of people जो कि below the poverty line जिंदा हैं, below the poverty line exist कर रहे हैं. Below the poverty line उनका survival भी मुमकिन है, and along with that they have got a very high level of self esteem as well. ओके, तो अब ये नहीं कहा जा सकता इब्राहिम मैस्लो के इस मॉडल को देखकर कि जो बॉटम ऑफ द पिरामिड के लोग हैं वो सब के सब विदाउट सेल्फ एस्टीम, विदाउट सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, विदाउट हैविंग एनी सोशल रिलेशन के एग्जिस्ट कर रहे होंगे. सो एक बेसिक मॉडल के तौर पर कि जिसमें हमें एक इंट्रोडक्टरी इंफॉर्मेशन मिलती है, यहां तक इब्राहिम मैस्लो का ये मॉडल और ये कॉन्सेप्ट हम मान सकते हैं. अब इन तमाम नीड्स की जो एप्लीकेशन साइड है रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटी, कि अब ऑर्गेनाइजेशन इस चीज को इंप्लीमेंट कैसे करे, उसको अब हम गो थ्रू कर रहे हैं. और यहां पर हम इस बात को भी मद्देनजर रख रहे हैं कि ये जरूरी नहीं होगा कि जब तक फर्स्ट लेवल नीड पूरी नहीं हो रही तब तक हायर लेवल नीड हम नहीं प्रोवाइड कर सकते या उसको नहीं फुलफिल कर सकते. अब उसकी इंप्लीकेशंस को देख लीजिए. फिजियोलॉजिकल नीड्स रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशनल इंप्लीकेशन would include that you have to provide lunch breaks, you have to provide rest breaks, and you have to give wages that are sufficient to purchase the essentials of life. Okay, तो ये तो आपका पहला स्टेप हो गया जिसमें कि आप रोटी कपड़ा मकान की बात कर रहे हो. The second need related to the safety, ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटी में जब हम इसको देखें तो प्रोवाइड अ सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट जिसमें हैजर्ड्स ना हो, जिसमें लाइफ थ्रेट्स ना हो, जिसमें प्रॉपर्टी सेव हो. So freedom from threats
एंड रिलेटिव जॉब सिक्योरिटी। अब जॉब सिक्योरिटी का होना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट अमर है, रिलेटेड टू द सिक्योरिटी नीड, रिलेटेड टू द सेफ्टी नीड, रिलेटेड टू द मोटिवेशन ऑफ द पीपल। अब आप क्या ये समझोगे कि जिस शख्स को जॉब सिक्योरिटी अवेलेबल नहीं है वो सेल्फ एस्टीम भी नहीं रखता, तो ये चीज हमारे लिए शायद काबिल कबूल नहीं होगी। इसी तरह थर्ड जो हमारे पास नीड सेट आ रहा है, दैट इज सोशल नीड्स। एंड रिलेटेड टू द सोशल नीड, ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटी में वी कैन क्रिएट अ फीलिंग ऑफ एक्सेप्टेंस, बिलोंगिंग एंड कम्युनिटी बाय रीइंफोर्सिंग टीम डायनामिक्स। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होगी, दैट वुड बी द डाइवर्सिटी मैनेजमेंट, कि अगर डिफरेंट रंगो मजहब के लोग, डिफरेंट एज ग्रुप के लोग, डिफरेंट जेंडर के लोग अगर एक जगह पर काम कर रहे हैं, तो उस डाइवर्सिटी को हम किस तरीके मैनेज वो कर पाएंगे। सो डाइवर्सिटी को मैनेज करने के लिए जो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, दैट इज टू क्रिएट अ फीलिंग ऑफ एक्सेप्टेंस। ओके, किसी को अपना जो होना है वहां पर ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटी के अंदर, वो एलियन के तौर पर ना लगे। सो वी हैव टू क्रिएट अ फीलिंग ऑफ एक्सेप्टेंस, then belonging and community by reinforcing team dynamics। तो ये हमारे पास एस्पेक्ट्स हो सकते हैं कि हम सोशल नीड्स को किस तरह से इनकॉर्पोरेट करें किसी भी वर्किंग एनवायरनमेंट में। इसी तरह जब हम सेल्फ एस्टीम की बात कर रहे हैं, तो इन सेल्फ एस्टीम इट इज सेड दैट रिकॉग्नाइज अचीवमेंट्स, assign important projects and provide status to make employees feel appreciated and valued। ओके तो अब हम जब भी ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी डिजाइन कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशनल हम कंपनसेशन एंड पैकेज प्लान्स की बात कर रहे हैं, तो वहां पर हमें इन बातों का ख्याल रखना पड़ेगा कि तमाम लोग मुख्तलिफ तरह के नीड सेट्स के साथ वहां पर मौजूद हैं, और तमाम लोगों को किसी ना किसी मौका पर इनमें से कोई ना कोई चीज प्रोवाइड करना वो जरूरी होगा, इफ वी फील एज इफ दे शुड बी मोटिवेटेड। ओके, तो अगर हम सेल्फ एस्टीम नीड्स की बात करें, तो उसमें वी शुड बी रिकॉग्नाइजिंग अचीवमेंट, जैसे एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, एम्प्लॉय ऑफ द वीक का टाइटल वो दिया जाता है। असाइन इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स, आप उनको चैलेंजिंग टास्क्स प्रोवाइड करें, एंड द चैलेंजिंग टास्क इटसेल्फ इज अ मोटिवेशन, but obviously that challenge should not be beyond the limits or the capabilities of the people, and provide status to make employees feel appreciated and valued। ओके, तो यहां से आप उनको जो सेल्फ एस्टीम का तस्वुर है वो मिल पाएगा। इसी तरह अगर हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड्स को कैटर करना चाहते हैं, तो उसके बारे में इट इज सेड दैट प्रोवाइड चैलेंजिंग एंड मीनिंगफुल वर्क व्हिच enables innovation, creativity and progress according to long term goals। ओके, तो अगर हम ये एनवायरनमेंट क्रिएट कर पाए, एक लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्टेक्स्ट डेवलप कर पाए, तो वहां पर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को लेकर आना कोई बहुत मुश्किल काम वो नहीं होगा। सो याद रखिएगा कि अकॉर्डिंग टू इब्राहिम मैस्लो, अगर हम इसको सेट्स ऑफ नीड के तौर पर पिक करें रादर देन हायरार्की ऑफ नीड, तो हमारे लिए शायद इसकी इंप्लीकेशन ज्यादा आसान हो जाएगी। और उस इंप्लीकेशन में अभी आपको बताया गया कि फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी, सोशल एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में आप किस किस्म के एस्पेक्ट्स को क्रिएट कर सकते हो एक ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटी के अंदर। इसी कॉन्टेक्स्ट को अब हम एक और अंदाज से देखते हैं कि आपका जो फिजियोलॉजिकल नीड का कॉन्सेप्ट है, उसमें डिस्क्रिप्शन में नो डाउट वी टॉक्ड अबाउट फूड, वाटर एंड शेल्टर, और उसके एग्जांपल्स ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटी के हवाले से आपका बेसिक पे लेवल टू बाई आइटम्स। सेफ्टी में दैट इज जॉब सिक्योरिटी, हेल्थ इंश्योरेंस। बिलोंगिंगनेस में इंटरपर्सनल रिलेशंस, पार्टीज, गेट टुगेदर्स। आपका अगर हम नेक्स्ट एस्पेक्ट देखें जिसमें वी आर टॉकिंग अबाउट एस्टीम, तो उसमें प्रमोशंस एंड रिकॉग्निशन। और अगर हम बात करें एक्चुअलाइजेशन की, तो यूज एबिलिटीज टू द फुलेस्ट, और ये हम कब करेंगे, जब हम उनको चैलेंजिंग टास्क देंगे और हम उनकी क्रिएटिविटी और इनोवेशन को वेलकम करेंगे। सो इब्राहिम मैस्लो ऑल्दो केम अप विद अ वेरी गुड आइडिया, लेकिन इसमें भी कुछ अभी कमी बाकी है मॉडल के अंदर, जिसको कि एड्रेस कर रहा है हर्जबर्ग, जिसको एड्रेस कर रहा है मैक्लिएंट। उन्होंने डिफरेंट अंदाज से नीड्स को एलैबोरेट किया, जो मॉडल्स अभी हम गो थ्रू करेंगे। यहां पर एक और चीज आपसे डिस्कस करना जरूरी है कि इब्राहिम मैस्लो केम अप विद अनदर कॉन्सेप्ट, और उसने कहा कि ये हायरार्की ऑफ नीड इज बेसिकली रिलेटेड टू द वेस्ट। ओके, और वेस्ट में हम चूंकि वेस्टर्न बुक्स मोस्टली पढ़ते हैं अपने सब्जेक्ट्स के कॉन्टेक्स्ट में,
तो वहां पर हमें वेस्टर्न मॉडल ही नजर आता है जिसमें कि उसने फिजियोलॉजिकल सेफ्टी, बिलोंगिंग, प्रेस्टीज और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात की। बट ही सेड कि जब हम ईस्टर्न मॉडल में जाते हैं तो वहां पर हायरार्की इज लिटिल डिफरेंट। अकॉर्डिंग टू इब्राहिम मैस्लो कि जो इंसान नुमा मखलूक एशिया में बसती है, नो डाउट दे वुड बी हैविंग फिजियोलॉजिकल नीड, बिकॉज फिजियोलॉजिकल नीड तो एक जानवर की भी होती है। इसी तरह ये इंसान नुमा मखलूक जो एशिया में बसती है, नो डाउट दे वुड बी हैविंग अ सेफ्टी नीड, बिकॉज एक जानवर को भी सेफ्टी नीड की जरूरत होती है। लेकिन द मोमेंट दे आर प्रोवाइडेड विद द सेफ्टी इन एशिया, it is said that rather than they should go for belongingness or social need, the Asian people they run after creating affiliations. ठीक है, वो राब्ते ढूंढने की कोशिश करते हैं। And the moment they are provided with any affiliation, the next step would be admiration rather than prestige. कि अब जब वो affiliated हो गए तो अब उनको तारीफ चाहिए। And once they are appreciated, once they are admired, तो rather than कि वो self actualization की तरफ जाएं, they suffer from status. ठीक है, so ये एक बड़ा biased model इब्राहिम मैस्लो ने प्रेजेंट किया। I highly object this model because ये आप specific नहीं कर सकते कि it is only limited to the Asian context. West में भी यही कुछ होता है। Okay, so rather than like showing your racist attitude, it is better कि हम इस बात को समझें कि the humans are humans and everywhere, either it is east or either it is west, the concept would remain the same. We can say that self-actualization can be replaced with status. We can say that prestige can be replaced with admiration. We can say the affiliation can be replaced with belonging. और ये आपका person to person variation इसमें prevail करेगी और उस person को आप limit नहीं कर सकते हो to east or to the west. When you talk about affiliation, तो affiliation का मतलब होता है कि आप अपनी जात के relationships की बजाय आप दूसरों से अपनी recognition को मनवाने की कोशिश करते हो, that you are affiliated with, अब आगे आप कोई भी उसमें एक्सप्रेशन यूज कर सकते हो, with a person, with a class, with a society, with an organization, with anything. तो वो आपकी डेफिनेशन नहीं होती, आप एक्चुअली उस एफिलिएटेड इंस्टीट्यूशन जिसके साथ आप एफिलिएशन कर रहे हो उसके गुडविल को अपने साथ एसोसिएट करके अपनी डेफिनेशन बनाने की कोशिश वो करते हो। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम कोई इदारा देखते हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि दैट इंस्टीट्यूशन इज एफिलिएटेड इंस्टीट्यूशन, अब वो किसी और बड़े इदारे के साथ एफिलिएटेड है, इसका मतलब क्या होगा कि उस छोटे इदारे की अपनी कोई शनाख्त, अपनी कोई इंडिविजुअलिटी, अपना कोई मुकाम, अपना कोई रिकॉग्निशन वो नहीं है, जबकि वो किसी बड़े इदारे की जो एस्टैब्लिश्ड गुडविल है उसको अपने साथ एसोसिएट करके अपनी डेफिनेशन बनाने की कोशिश वो कर रहे हैं। ओके, बेशुमार हमारे पास एग्जांपल्स हैं जिसमें कि आपके यूरोपियन यूनियन के दौरान इट वाज क्वाइट एविडेंट कि वहां पर किस कदर एफिलिएशन और एडमायरेशन और स्टेटस के इश्यूज जो थे वो यूके की तरफ से सामने आए। सो लाइकवाइज यू टॉक अबाउट एनी सोसाइटी, यू टॉक अबाउट एनी प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, the same model which is applicable in Asia is applicable to them. Okay, so but anyhow, being researchers and being students, we should be knowing कि इब्राहिम मैस्लो का जो मॉडल हम हमेशा से पढ़ते आए हैं, that was the Western model, and he came up with another idea which was linked with the Asian perspective, with which I have got certain reservations and lot of objections. So another person who came up with similar description is Alderfer, and Alderfer came up with an idea of ERG theory. ERG is more like the 5 needs as discussed by Maslow. E stands for existence, R stands for relatedness, and G stands for growth. He said that the first level of need is existence, in which you might be looking for food, water, clothing, and shelter. And obviously, if we take the example of its organizational implication to adequate pay for necessities, that is the same point जिसको हम physiological need में भी discuss कर चुके हैं. He said that once the existence is ensured, तो उसके बाद जो need हमारे पास आ रही है, that is relatedness, जिसको इब्राहिम मैस्लो like social need का नाम वो दे रहा था, और existence के अंदर आपकी जो security का वाला part है वो भी cover कर रहा है एल्डरफर. So existence
के बाद जो रिलेटेडनेस का कॉन्सेप्ट डेवलप करेगा, इसमें यू आर लुकिंग फॉर इंटरपर्सनल रिलेशंस एंड फीलिंग्स, एंड इट्स एग्जांपल कैन बी गुड रिलेशंस, एक्यूरेट फीडबैक. तो ये आपका कॉन्सेप्ट होगा रिलेटेडनेस का. And once the relatedness is there, to the next level of highest level of need, जिसको उसने कहा, that is growth, जिसमें के actualization, esteem, इस तरह के तमाम perspectives जो हैं वो इकट्ठे समाप्त वो हो जाएंगे. And in the growth context, उसकी description जैसे self development है, creative work है, ये हमारे पास उसका descriptive aspect है. और अगर हम उसके examples की बात करें तो you should be providing an environment in which people are able to continually improve their skills. ठीक है, जब हम उनकी कंपिटेंसीज और प्रोफिशिएंसीज के ऊपर फोकस करना शुरू करें, जब हम एक लर्निंग एनवायरनमेंट वो क्रिएट करें. सो एल्डरफर ही केम अप विद द ERG मॉडल, और एल्डरफर का कहना यह था कि आफ्टर लोअर लेवल नीड सेटिस्फाइड, पीपल सीक्स हायर नीड्स. ठीक है, सो सेम कॉन्सेप्ट जो कि इब्राहिम मैस्लो ने भी दिया, लेकिन इसमें जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा था वो ये था, ही सेड व्हेन अनएबल टू सेटिस्फाई हायर नीड्स, कि अगर फर्ज करें कि आप डेवलप ना कर पाए, आप एग्जिस्टेंस से रिलेटेडनेस में ना पहुंच पाए, या आप रिलेटेडनेस से ग्रोथ में ना पहुंच पाए, तो एल्डरफर कहता है कि लोअर नीड्स मोटिवेशन इज रेज्ड. तो फिर आप जिस मुकाम तक डेवलप कर पाए होते हो, आप फिर उसी मुकाम में अपनी सेटिस्फेक्शन, अपनी मोटिवेशन, उसको तलाश करना, उसको ढूंढना वो शुरू कर देते हो. ओके, so this is like some additional aspect जो कि एल्डरफर ने आइडेंटिफाई किया, whereas इब्राहिम मैस्लो का जो कॉन्सेप्ट था that was more rigid, that was more biased. अब मोटिवेशन थ्योरीज में another theory which is coming up with हर्सबर्ग मॉडल, हर्सबर्ग मोटिवेशन का जो कॉन्सेप्ट था हाइजीन मोटिवेटर थ्योरी का, that is rather more applicable, that is rather more adequate, that is rather more generous in its discussion, because हर्सबर्ग ने कुछ ऐसी बातें आइडेंटिफाई की जिन बातों को इब्राहिम और एल्डरफर वो इग्नोर कर रहे थे. अकॉर्डिंग टू हर्सबर्ग, उसने कहा कि इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक नीड्स को हमें सेपरेटली डील करना पड़ेगा. ठीक है, सो नीड सेट जो है वो चाहे एक शख्स का ही है, लेकिन एक शख्स कि अपने मन की मिराज और एक शख्स की बैरूनी दुनिया के हालात और वाकयात, ये दो टोटली मुख्तलिफ कॉन्टेक्स्ट हैं. इन एस्पेक्ट्स को उसने लिंक किया विद सेटिस्फेक्शन एंड नॉट सेटिस्फेक्शन. उसने कहा कि सेटिस्फेक्शन या डिससेटिस्फेक्शन जो है ये एक ही डिग्री के दो साइड्स नहीं है. ही सेड कि सेटिस्फेक्शन एंड नो सेटिस्फेक्शन ये एक फिनोमेना है, एंड डिससेटिस्फेक्शन एंड नो डिससेटिस्फेक्शन ये दूसरा फिनोमेना है. एंड ही सेड कि सेटिस्फेक्शन इज लिंक्ड विद मोर इंट्रिंसिक एस्पेक्ट्स एंड डिससेटिस्फेक्शन इज लिंक्ड विद मोर एक्सट्रिंसिक एस्पेक्ट्स. ठीक है, सो हाइजीन पर्सपेक्टिव में हर्सबर्ग का कहना यह था कि इनएडिक्वेट वर्किंग कंडीशंस, सैलरी, incentive pay can raise dissatisfaction and prevent satisfaction. Sorry, can cause dissatisfaction and prevent satisfaction. तो ये हो गया जो extrinsic aspect से चीज वो linked है. लेकिन पे आप adequate कर भी दो तो that does not mean कि the person would be moved to the category of satisfaction. वो सिर्फ dissatisfaction से no dissatisfaction तक develop वो कर पाएगा. And then he talked about motivators, और उसने कहा कि intrinsic job factors में job enrichment, which would be like related to challenging job, feedback and recognition, addresses higher level needs like achievement, self-actualization. ये जो aspects होंगे, they would be more like intrinsic job factors. And according to Herzberg, he said the best way to motivate someone is to organize the job so that doing it helps satisfy the person's higher level needs. ठीक है, इसी तरह अगर हम हाइजीन फैक्टर्स की बात करें, एक्सटर्नल मोटिवेटर्स की बात करें, एक्सटर्नल हाइजीन फैक्टर्स की बात करें, तो दैट इज रिलेटेड टू द मोर टेंजिबल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ. जबकि जो मोटिवेटर्स हैं, इंट्रिंसिक जॉब फैक्टर्स हैं, दे आर मोर लिंक्ड विद intangible aspects of life. The hygiene factors, they are more linked with verbal aspects. जबकि जो motivators हैं, they are more linked with non-verbal aspects. इस बात को समझाने के लिए
एक बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी आई ऑलवेज लव टू टेल इन डिस्क्रिप्शन ऑफ हर्ट्जबर्ग टू फैक्टर मॉडल, और वो स्टोरी कुछ इस तरह से है कि once there was a king, right, and he was very powerful king, a big kingdom was under him, big army, lots of resources and fortune, ठीक है। तो उसके पास दुनिया के पर्सपेक्टिव में जो कुछ मुमकिन हो सकता था वो था, ताकत भी थी, शाहो हशमत भी थी, दौलत भी थी, लेकिन एक चीज जिसकी उसकी जात में कमी थी वो सुकून था। He was not satisfied, he was not happy. So one day he called his prime minister and said कि मेरे पास दुनिया का दिया हुआ सब कुछ है, tangible aspects हर तरह के हैं, लेकिन I'm not satisfied, I'm not happy, what shall I do? So the prime minister was some intelligent person, और उसने कहा कि जनाब आप किसी ऐसे शख्स के जूते पहने जो कभी नाराज ना हुआ हो तो आप खुश हो जाएंगे। He said, okay, that is pretty simple. उसने पूरे मुल्क में ऐलान करवाया कि कोई ऐसा शख्स जो अपने जूते बेचे और वो कभी ना खुश ना हुआ हो तो मैं उसके जूते मुंह मांगे दामों खरीदने को तैयार हूं। सो ये ऐलान सुनते ही बहुत से लोगों ने अपने जूते पकड़े और महल में आ गए लालच में, लेकिन जब उन अशखास को आजमाया गया तो इट वॉज एविडेंट कि दे वर डिमोटिवेटेड, दे वर अनहैप्पी। सो कोई ऐसा शख्स उस बादशाह को ना मिल सका जो कभी ना खुश ना हुआ हो। इस चीज ने उससे गम में मजीद इजाफा कर दिया। उसने अपने प्राइम मिनिस्टर को फिर बुलाया और बुलाकर कहा कि मुझे तो कोई ऐसा शख्स नहीं मिल पाया कि जो कभी ना खुश ना हुआ हो। तो प्राइम मिनिस्टर हु वाज एन इंटेलिजेंट गाय, वो कहता है कि जनाब आप ऐसा करें कि दूर एक इलाके में एक बूढ़ा मछेरा रहता है और वो कभी ना खुश नहीं हुआ, हमेशा खुश रहता है, आप जाकर उससे राब्ता करें। यहां तक बादशाह का एतबार लोगों से उठ चुका था। उसने भेस बदला और दूसरे जो दूर इलाका था वहां पर वो उस बूढ़े मछेरे की तलाश में चला गया, यहां तक कि उसने उस बूढ़े मछेरे को ढूंढ निकाला। कई दिन वो उस बूढ़े मछेरे को देखता रहा कि वो अपनी धुन में मगन है और हमेशा खुश रहता है। एक दिन उस बादशाह से ना रहा गया, वो उस बूढ़े मछेरे के पास गया और जाकर कहता है कि बाबा आप हमेशा खुश रहते हैं। उस बूढ़े मछेरे ने मुस्कुराकर कहा, जी बेटा मैं हमेशा खुश रहता हूं। उस बादशाह ने बूढ़े मछेरे को कहा कि बाबा मैं आपके जूते खरीदना चाहता हूं। तो उस बूढ़े मछेरे ने जवाब दिया कि जनाब मेरे पास तो जूते ही नहीं है। उसके इस जवाब से बादशाह पर एक राज आश्कार हुआ, और वो राज ये था कि टेंजिबल्स, एक्सटर्नल वर्ल्ड, दुनियावी जो रिसोर्सेज हैं वो आपकी असल खुशी का सबब हमेशा नहीं हो सकते। तो एक शख्स तब भी हमेशा खुश रह सकता है चाहे कि उसके पास जूते ना हो। तो यहां पर इस स्टोरी के अंदर जो मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि द शूज वर नॉट एक्चुअली द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, द शूज वर रिप्रेजेंटिंग द टेंजिबल्स, द शूज वर रिप्रेजेंटिंग द वर्ल्ड। ओके, एंड जो चीज हमें समझने की है वो ये है कि एक गरीब भी खुश रह सकता है, और जो चीज हमें समझने की है वो ये है कि एक अमीर भी नाखुश हो सकता है। सो हर्ट्जबर्ग ने इसी फैक्टर को आइडेंटिफाई किया कि मोटिवेशन और हाइजीन दो मुख्तलिफ चीजें हैं। इंट्रिंसिक एस्पेक्ट्स और एक्सट्रिंसिक एस्पेक्ट्स दो मुख्तलिफ चीजें हैं, और हमें लोगों की नीड के मुताबिक ही इस बात को एडजस्ट करना पड़ेगा कि कौन सी चीजें उन्हें इनर सेटिस्फेक्शन दे सकती हैं, इनर सेल्फ को सेटिस्फाई कर सकती हैं, और कौन सी चीजें सिर्फ दिखावे की हैं, कौन सी चीजें सिर्फ टेंजिबल्स हैं जिससे कि सिर्फ आप एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन वो हासिल कर सकते हो। ओके, सो अब इसकी बॉटम लाइन हम दोबारा देख रहे हैं कि द बेस्ट वे टू मोटिवेट समवन इज टू ऑर्गेनाइज द जॉब। किस तरीके से हमने ऑर्गेनाइज करना है? सो दैट डूइंग इट हेल्प सेटिस्फाई द पर्सन्स हायर लेवल नीड्स। अब अगर हम इसको कैटेगराइज करें ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट में, तो जॉब डिससेटिस्फेक्शन के जो एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, दे माइट बी क्वालिटी ऑफ सुपरवाइजर, पे, कंपनी पॉलिसीज, फिजिकल वर्किंग कंडीशंस, रिलेशन विद अदर्स एंड जॉब सिक्योरिटी। और अगर हम इसको जॉब मोटिवेटर्स के कॉन्टेक्स्ट में, जॉब सेटिस्फेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में देखें, तो जो हमारे पास पॉइंट्स आएंगे इंप्लीकेशन ऑफ दिस मॉडल के लिए इन द ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटी, दे आर प्रमोशनल अपॉर्चुनिटीज, opportunities for growth, recognition, responsibility, achievement.
राइट, जिनको कि हम जॉब कैरेक्टरिस्टिक मॉडल में भी डिस्कस करेंगे इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। तो ये तमाम चीजें हमें मोटिवेशन प्रोवाइड कर सकती हैं एक ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटी के पर्सपेक्टिव में। अब मैक्लियन केम अप विद अ टोटली डिफरेंट आइडिया। मैस्लो ने 5 नीड्स आइडेंटिफाई की, एल्डरफर ने 3 नीड्स आइडेंटिफाई की, हर्सबर्ग ने उन नीड्स को इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक पर्सपेक्टिव में डिवाइड कर दिया, जबकि मैक्लियन जो है वो कुछ नए मॉडल के साथ आया। ही सेड कि हमारे पास 3 तरह की नीड्स होती हैं, नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर पावर एंड नीड फॉर एफिलिएशन। और मैक्लियन की मॉडल के मुताबिक ये तीनों नीड्स हर किसी को हर वक्त रिक्वायर्ड होंगी। फॉर एग्जांपल, जब हम बात करते हैं नीड फॉर अचीवमेंट की, द कंसर्न फॉर एस्टैब्लिशिंग एंड मेंटेनिंग हाई लेवल ऑफ परफॉर्मेंस क्वालिटी। ठीक है, सो आप अचीवमेंट ओरिएंटेड जो आपकी लाइफ है वो हो चुकी होती है। जब हम नीड फॉर पावर की बात करें तो कंसर्न फॉर रेपुटेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन्फ्लुएंस, इंपैक्ट एंड कंट्रोल ओवर अदर्स, सो दैट इज द नीड फॉर पावर। एंड नीड फॉर एफिलिएशन में कंसर्न फॉर एस्टैब्लिशिंग एंड मेंटेनिंग सोशल रिलेशनशिप्स। ओके, तो मैक्लियन के मुताबिक ये 3 तरह की नीड्स हैं जो हर शख्स के साथ वाबस्ता है, और इन तीनों नीड्स में से कोई नीड दूसरों को सुपरसीड कर जाती है। किसी शख्स के लिए किसी एक नीड को फुलफिल करने की जो डिजायर है वो बकिया दोनों नीड्स की निस्बत वो बढ़ जाती है, तो वो उसी नीड को, चाहे वो नीड फॉर एफिलिएशन हो, पार हो या एफिलिएशन हो, वो फुलफिल करने के लिए अपनी तमाम जुस्तजू, तमाम तगोदो वो लगा देता है। सो अगर हम अब इन 3 नीड्स की एप्लीकेशन साइड की बात करें कि इन 3 नीड्स को, नीड फॉर एफिलिएशन, नीड फॉर पावर एंड नीड फॉर अचीवमेंट, अगर हम इसको ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटी में अप्लाई करने की बात करें कि इसका मॉडल हमने अप्लाई कैसे करना है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हमारे सामने आएंगी, जिसमें कि हम सबसे पहले एफिलिएशन की बात कर रहे हैं कि अ पर्सन विद स्ट्रॉन्ग नीड फॉर एफिलिएशन may respond readily to job assignments that provide with opportunities to relate to socially attractive and satisfying individuals or groups. ठीक है, तो इस शख्स का जो पर्सपेक्टिव होगा, it is more linked with the opportunity to relate to socially attractive and satisfying individuals or groups, जहां पर उसकी जो एसोसिएशन है, जहां पर उसकी जो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है वो बेहतर क्रिएट हो सके। सो एक ऐसा वर्क इन्वायरमेंट जिसमें के आपस में मिलजुल कर रहने का कॉन्सेप्ट हो, जहां पर टीम ओरिएंटेशन हो, जहां पर ग्रुप वर्क असाइन किए जाते हो, जहां पर ग्रुप्स में कोहेरेंस पाई जाती हो, तो वहां पर नीड फॉर एफिलिएशन वो फुलफिल हो रही होगी। इसी तरह सेकेंड लेवल नीड देखिए कि पर्सन्स हु आर वेरी स्टेटस कॉन्शियस कैन बी मोटिवेटेड विद द अवेलेबिलिटी ऑफ अ पैनल्ड ऑफिस, अ कारपेटेड फ्लोर एंड वॉल पेंटिंग्स, a large desk and aristocratic furniture, or a private bathroom, impressive job title, their own visiting cards, their own secretary and telephone, or a well-located parking place with their name clearly printed underneath the reserved sign. ठीक है, तो ये तमाम चीजें क्या करती हैं, ये आपको एक स्टेटस सिंबल प्रोवाइड करती हैं, और इस स्टेटस सिंबल के मिलने से आपकी जो नीड होगी ऑफ एफिलिएशन, आपकी नीड होगी जो अपने आप को बनवाने की, इट वुड बी सेटिस्फाइड। इसी तरह an employee with high level desires for power may respond easily to opportunities whereby he can gain leadership and administrative responsibilities. ओके, तो अब इनकी जॉब को अगर आप एनरिचमेंट की तरफ लेकर जाओ, अगर आप इनको डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी दो, अगर आप इनको डेवोल्यूशन रोल असाइन करो, तो दीज पीपल वुड बी मोर देन हैप्पी। Why? Because उससे उनकी जो डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी है वो जनरेट होगी, और उस डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी के साथ दे वुड बी फीलिंग द सेंस ऑफ पावर, और उनकी सेंस ऑफ पावर, उनकी नीड फॉर पावर को फैसिलिटेट और सेटिस्फाई वो कर रही होगी। इसी तरह द यूज ऑफ जॉब एनलार्जमेंट प्रोवाइड्स एडेड इंसेंटिव to some employees because they feel capable of controlling wider sets of activities than they previously performed. Okay, तो अब आप उनकी vertical loading of job करो, आप उनको horizontal loading of job करो. So either case, these are the people who are obsessed by the word power. Fourth implication इसकी देखिए, it is said that persons interested in enhancing their reputations and receiving recognition in the eyes of others may respond to verbal praise or to publicized awards. ठीक है, जिसमें के उनकी recognition हो, जिसमें के उनको
अपना फेमस होना नजर आ रहा हो, जिसमें कि उनको इस बात की तस्कीन पहुंचे कि पीपल आर टॉकिंग अबाउट देम, दे आर बीइंग रिकॉग्नाइज्ड, दे आर बीइंग अप्रिशिएटेड, दे आर एम्प्लॉय ऑफ द मंथ। ठीक है, तो इस तरह हम इन थ्योरीज की एप्लीकेशन साइड को वो गो थ्रू करते हैं कि किस किस तरीके से मैस्लो, एल्डरफर, हर्जबर्ग, मैक्लियंट, इनके मॉडल्स को हम ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटी में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। यहां पर हमारा फर्स्ट जूम सेशन टाइम खत्म हो रहा है, काइंडली सेकंड जूम सेशन में ज्वाइन कीजिए। जज़ाकल्लाह फॉर ज्वाइनिंग दिस टाइम।